যে তারা তাদের নিজের ব্যক্তিগত দরিদ্রতা কমানোর জন্য তারা পশ্চিমবাংলার প্রতিটা সরকারি চাকরি ব্যবস্থাকে তারা বিক্রি করার জন্য উঠে পড়ে লেগে পড়ল। স্কুল টিচারে যারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাদের প্যানেলটাকে বাদ দিয়ে প্রতিটা এমএলএ এমপি তাদের কোটা থেকে 10 লক্ষ তাদেরকে চাকরিটা বিক্রি করে দিল। আর আমার যোগ্য দরিদ্র বোনটা বা দাদাটা এখনো পর্যন্ত রাস্তায় বসে আছে। পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। পরিবর্তন যাত্রা আপনার কাঁচরাপাড়া থেকে শুরু হয়েছে, কাঁচরাপাড়ার আপনার কাপামোড় থেকে, সেটা কাঁচরাপাড়া হয়ে আপনার হালিশহর চেনগেট হয়ে পাঁচমাথা হয়ে আমাদের রাজেন্দ্রপুর হয়ে সাহেবপুরে ঢুকে নৈহাটি দিয়ে ভাটপাড়া হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পরিবর্তন যাত্রা করতে হচ্ছে যে তৃণমূলের যে অপশাসন দুর্নীতি চলছে তার জন্য আজকে মানুষের যে পরিবর্তন চাইছে সেটাই বিজেপির হাত ধরে সেই পরিবর্তন হবে আগামী দিনে 2026-এ। তাই পরিবর্তন করতে হচ্ছে। চারিদিকে যেরকম দুর্নীতি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, তারপরে যেরকম সামাজিক কাটমানি বিভিন্ন আপনারা দেখছেন সমস্ত কিছুতে দুর্নীতি। এই দুর্নীতি থেকে উপড়ে ফেলার জন্য আজকে পরিবর্তন করা দরকার। দেখুন, বিজেপি বাধা রুখে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ওইটা টিএমসি আপনারা দেখবেন নৈহাটিতেও গতকালকে আমরা ঝান্ডা লাগানো হয়েছিল, সেখানে নৈহাটির এমএলএ স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে সেই সময় ঝান্ডা খুলেছেন। তো বাধা ওরা প্রতিনিয়ত তৈরি করছে, সেই বাধা উপেক্ষা করে বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে তারা সেই পথে এগিয়ে যাবে। তো এটা সাধারণ মানুষও দেখছে, বিজেপি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে 2026-এ একদম জেতার জন্য রেডি রয়েছে। নারায়ণ বিশ্বাস, জগদ্দল বিধানসভা কনভেনার। বাংলা জুড়ে যে পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছে, যে ঢেউ উঠেছে, তারই একটা তরঙ্গ আজকে নৈহাটির ওপর দিয়ে এবং গোটা ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের ওপর দিয়ে, নৈহাটির ওপর দিয়ে, ব্যারাকপুরের ওপর দিয়ে এই পরিবর্তনের তরঙ্গ আজকে বয়ে যাবে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অপশাসনের বিরুদ্ধে, এই দুষ্কৃতিরাজের বিরুদ্ধে এক পরিবর্তন। বাংলার মানুষ চাইছে পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন যাত্রাই তার শুভ সূচনা। বার্তা আগামী 2026-এর ইলেকশন আসছে।
ভারতীয় জনতা পার্টি সাধারণ মানুষের সমর্থনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বাংলায় সরকার গঠন করবে। তার জন্যে আমি সাধারণ মানুষকে আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদেরকে এরকম সমর্থন করার জন্যে, এবং এই দুষ্কৃতী সরকারকে, এই দুর্নীতির সরকারকে বাংলা থেকে আগামী দিন নির্মূল হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ সেটা করবে। আমার নাম সৌম্যদীপ মণ্ডল, আমি সহসভাপতি। पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में डाल देती है। इसके बगल में चले जाइए, सीसी का खाना खत्म हो चुका, इंडियन पेपर पल्स खत्म हो चुका, हुकुमचंद में मजदूर को काम नहीं, गर्दन रेत कर गर्दन नई हट्टी जूट मिल की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है। नई हट्टी जूट मिल खत्म हो चुका है, पूरा इंडस्ट्री को बने कूल के इंडस्ट्री। भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय माता। भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोले इस परिवर्तन यात्रा को, जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। भूमिपुत्र के लिए जोरदार तालियों से भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय। भाई को साइड दीजिए, साइड दीजिए, आप लोग साइड नीचे करबे। मोबाइलটা সামনে ধরলে দেখা যায় ভিডিওটা পিছনে इस बारे में कहना चाहूंगा कि यहां आए दिन इस जगह को अपराध का अड्डा बना दिया गया, लोगों की हत्याएं होती है और तृणमूल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते हैं। तृणमूल के पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में डाल देती है। इसके बगल में चले जाइए, सीसी कारखाना खत्म हो चुका, इंडियन पेपर पल्स खत्म हो चुका, हुकुमचंद में मजदूर को काम नहीं, गर्दन रेत कर गर्दन टीप कर वहां लोगों से 8 घंटे का पैसा देकर 8.5 घंटा काम कराया जाता है। नई हट्टी जूट मिल की स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या है। नई हट्टी जूट मिल खत्म हो चुका है, पूरा इंडस्ट्री को बनीपुर के इंडस्ट्रियल इलाके को सुनसान बना दिया गया। करता था जिसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, खत्म हो चुका। आपको पता है आज भी जेजेआई जूट मिल बंद हो चुका है, एलायंस जूट मिल बंद हो चुका है, नदिया मिल जूट मिल किसी तरह से धुक धुक करके चल रही है। उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग 49 वर्ष, बंगाल की जनता 49 वर्ष पीछे है। एकमात्र बंगाल की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे और कब हम इस
इस इलाके के, इस बंगाल का, इस बंगाल की धरती का, बंगाल की धरती को कैसे हम फिर से सींचेंगे, फिर से यहां कैसे इंडस्ट्री लहराएगा। हुगली नदी के दोनों किनारों पर चिमनियां से लिए अगर पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं आती है, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आती है, तो पश्चिम बंगाल आने वाले दिन में किस जगह पर पहुंचेगा आपको भी पता है। आपके बगल में ही यहां नेल्सन रोड कहा जाता है हाजीनगर में, जहां पर कोई भी दुर्गा की प्रतिमा, कोई भी काली की प्रतिमा, कोई भी सरस्वती की प्रतिमा वहां उस गली में, उस मोहल्ले में नहीं जा सकती है। राम प्रसाद भीटे के नाम पर यहां मूर्ति बैठाने की बात थी कब्रिस्तान के पास, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां मंदिर मूर्ति नहीं बैठा पाए। आज स्थिति है पूरे बंगाल की कि लव जिहाद, लैंड जिहाद में पूरा आदिवासी समाज, हिंदू समाज, सनातनी समाज, सारे जमीनों को दखल कर लिया जा रहा है। ममता बनर्जी आई कहे किसी ये नहीं मानेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी ने कहा था एसआईआर नहीं मानेंगे, सारा चीज आज एसआईआर हो, सीए हो, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी आज धारणा पर बैठी हैं। किसको बचाने के लिए ममता बनर्जी धारणा पर बैठी हैं? जिहादियों को बचाने के लिए। उनका एक एमपी कहता है मंच पर खड़ा होकर कि अगर एसआईआर में एक भी बहुत बड़ी बात हुआ तो जिहाद होगा। कल्याण बनर्जी जैसे लोग जिहाद की बात करते हैं। बंगाल की जनता इस जिहाद को समझती है, बंगाल की जनता इस जिहाद की भुक्तभोगी है। आज अपने बीवी बच्चों के साथ रात को आप निकल नहीं सकते हैं, आज अपने बीवी बच्चों के साथ आप सिनेमा नहीं जा सकते हैं, आज दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, आज होली नहीं खेल सकते हैं। आज ऐसे ज्यादा जगह पर हमारे ये परिवर्तन यात्रा जो था, परिवर्तन यात्रा को आधे से अधिक जगहों पर रोक दिया गया है। कहा गया है यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है, यहाँ पर मुसलमानों की दुकान लगी है, इस जगह से नहीं जाएगा। क्या इस दिन के लिए इस भारतवर्ष में आप पैदा लिए? ये बंगाल क्या भारतवर्ष के बाहर है? क्या बंगाल भारतवर्ष से दूर है? क्या बंगाल आने वाले दिन में एक्सटेंडेड बांग्लादेश की तरफ जा रहा है? ये तमाम बातें को पर विचार करना है 26 के चुनाव में। हमारे दोनों सुन लीजिए मेरी बात को। मेरा बेटा को ये लोग गुंडा लोग मिल के मेरा बेटा को फंसा दिया है। एक माँ से, एक औरत से, एक बेटा से जुदा कर दिया है। उसका इंसाफ चाहिए, मेरे बेटा का इंसाफ चाहिए। देखिए, एक माँ भरी सभा में मंच से कह रही है कि तृणमूल पार्टी के गुंडों ने इनके बेटे को फंसाने का काम किया, लेकिन माँ उस दिन का इंतजार भी करने के लिए तैयार है कि इस तृणमूल पार्टी के गुंडों की सरकार जाएगी और माँ ने आशीर्वाद दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। माँ ने कहा है कि मोदी जी आएंगे, मेरे बंगाल को सुरक्षित बनाएंगे, और यही माँ की दुआ हम सबको भी चाहिए। और हम सब मिलकर कहते हैं बेटा केवल आपका नहीं, हमारा भाई भी है, हम इकट्ठे मिलकर उसकी रिहाई भी कराएंगे और बंगाल को सुरक्षित भी बनाएंगे। माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भी बदलेगी, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी। बंगाल ने ठाना है ममता बनर्जी को हराना है, क्योंकि महिलाओं का अपमान और देश की राष्ट्रपति का अपमान जो ममता बनर्जी जी ने किया है, वो देश की किसी महिला या किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आता। किस तरह से क्या इसी तरह से बंगाल की इस महान धरती पर देश की राष्ट्रपति हो,
देश की राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के राज्यपाल हो, क्या इनका अपमान ममता बनर्जी जी ऐसे करती रही? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान और घुसपैठियों का सम्मान। अरे विरोध करती हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का, और स्वागत करती हो रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ये कैसी सरकार है ममता बनर्जी की? 5000 स्कूल बंद हो गए, 8 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, 8 लाख करोड़ का, और 8000 स्कूल बंद हो गए। और यही नहीं, लाखों पद नौकरियों के खाली पड़े हैं। 7वां वित्त आयोग लागू नहीं किया है। हमने कहा है हम आएंगे, 7वां वित्त आयोग लागू भी करेंगे। 7वां वित्त आयोग, जो खाली पद है उनको 2 महीने के अंदर भरने की प्रक्रिया को पूरा शुरू कर देंगे, और कट मनी कमीशन को बंद करेंगे। और केवल घुसपैठ बंद नहीं, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। हिंदुस्तान में बंगाल की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करेंगे। जो इस देश के नागरिक हैं, जो बंगाल में जिनके पास अपने कागज पत्र हैं, उनको वोट का अधिकार है, लेकिन जो इस देश के नहीं, उसको इस देश में वोट का अधिकार भी नहीं। मैंने कहा घुसपैठियों को भगाने का काम करना। सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, फिर डिलीट करना, फिर डिपोर्ट करना। राष्ट्रपति के आदिवासी समाज को नेग्लेक्ट किया राज्य सरकार। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार बंगाल में हुआ है, अब उसका एक नया उदाहरण ममता बनर्जी ने पेश किया है। एक महिला राष्ट्रपति जो ट्राइबल समाज से आती हैं, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, गरीब घर से आती हैं, उसका अपमान एक इंटरनेशनल कार्यक्रम से पहले जिस तरह से बंगाल की भूमि पर हुआ, ये स्पष्ट संदेश ममता बनर्जी ने दिया है कि उनकी बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये सब दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। राष्ट्रपति का जो सभा स्थल है वो बार बार चेंज किया राज्य सरकार से। क्या किया? राष्ट्रपति सभा स्थल बार बार चेंज किया, सभा स्थल बार बार बदलना और ये कहना कि उनको जानकारी नहीं, ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री झूठ भी बोल रही है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है और राज्य को अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वो बंगाल की महान भूमि जिसने संत, महात्मा, बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता सेनानी सब दिए, आज उस भूमि पर इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं, जहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं, जहाँ पर केवल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो एक महिला राष्ट्रपति का विरोध करती है? ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है महिला दिवस से पहले देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति का अपमान करती है? इलेक्शन कमीशन हैज टू डिसाइड अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पोल्स टाइम, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड. Let them decide.